Today our topic is free consent of the parties. So in law, Indian Contract Act 1872, one is nature of contract and one is free consent of the parties. Nature of the contract, we have already discussed the basic meaning of number of terms such as offer, acceptance, void agreement, voidable contract, void contract, promisor, promisee, reciprocal promise, contract, essential elements of a valid contract, then communication, revocation of offer and acceptance, illegal agreement, unlawful agreement, executed contract, executory contract. Okay. So then also we have discussed persons of unsound mind, then minor. Okay. So these all point we have discussed. In the same, today extension is free consent of the parties. Even in offer and acceptance, one condition was that acceptance, their condition is free consent. Now, what do we mean by free consent? So, simple answer is when a person offers or when a person accepts, they should offer or accept from free mind. Free mind meaning is in their own. In their own means A said to B, I want to sell my cycle at rupees 2000. This is A's decision, not affected by any other factors. This is sole decision of A. And if B is saying, I am ready to buy the cycle at rupees 2000, it is B's sole decision. There is or their consent is not affected by coercion, undue influence, mistake. So, when it is not affected means independent, both are independent to accept or reject. We say consent is free. So, in this regard, first word is what is consent? What is consent? Okay. So, what is consent? So, here under section 13, under section 13, okay, they are saying when the parties agree, when the parties agree upon the same thing in the same sense, same thing in the same sense. Okay, chalo. We have already done this one word consensus ad idem. We have considered example also. Our example was old cycle, new cycle. Seller is thinking old cycle, buyer is thinking new cycle, confusion, both agreed, and finally dispute. Now suppose again you went to market. You went to market and asked what is the price per kg. So shop of fruit. Other thought you are asking for mango price. He said 80 rupees kilo. You are thinking some other fruit, say apple.
You said okay, agreed. When other giving mango, you are saying no, I said apple. Apple 80 rupees per kg you said. He is saying no, I said mango per kg 80 rupees. It means there is some difference. Now you use the word mistake, or you say both the persons thinking different thing, not same thing in the same sense. So consent means same thing, same sense. Then only we'll say consent. I think meaning is very clear. So word meaning consent. So party agree, same thing in the same sense. So this is interpretation of word consent. Okay, again another word is free consent. Another word is free consent. Write down section 14. Okay, so here we say consent is free if not caused by the following. Not caused by the following. One is coercion, other is undue influence, then is fraud, then misrepresentation, then mistake, then mistake. So here we can write down section 15, section 16, section 17, section 18, section 20, 21 and 22. Okay. So what we see missing is section 19. This is effect. This is effect. What effect? If coercion, what will happen? Undue influence, what will happen? Fraud, what will happen? Answer is cancel. Answer is action. Effect is coming under section 19. So again, so section 13 is coming under consent, 14 is free consent. Free consent not affected by 5. Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. And in this regard, so 13, 14, 15, 16, 17, 18, then 20, 21 and 22. 19 is effect. What will happen if coercion? What will happen undue influence? What will happen fraud? That effect is section 19. So if the 5 word meaning is clear, our concept is also clear. So first word coercion. So word coercion. Okay. So committing or threatening to commit any act forbidden by
Indian Penal Code or unlawful detaining detaining or threatening to detain, threatening to detain any property, okay, with the intention of causing any person to enter into an agreement. Okay, clear? So, interpretation of this line itself full meaning. Committing or threatening to commit any act. थ्रेटनिंग हिंदी में किसी को डराना, धमकाना, ठीक है, भय दिखाना. क्लियर? व्हाट इज बार्ड बाय इंडियन पेनल कोड? ठीक है, ये सब इंडियन पेनल कोड में एकदम मना है. ठीक है, इसको कैसे समझना है? कोई अगर गलत कर रहा है, ठीक है, तो पहला गलत करना मना है. क्लियर? तो एनीवन थ्रेटनिंग, एक होता है डराना और एक होता है नहीं कर दिया. जैसे बोलता है ना मार देंगे, तो हुआ थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, और एक है मार दिया, कमिटेड. एक्ट किया या करेगा, जो आईपीसी में बार्ड है, फॉरबिडन है. और अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब यू आर डूइंग रॉन्ग. ठीक है, जैसे कोई रास्ता में जा रहा है, आप उसके, वो बाइक से जा रहा है, आप बाइक वाला को रोके, उसको उतार दिए, उसका बाइक रख लिए. ठीक है, ओके. और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, या उसका कोई सामान रख लिए. ओके, और उसके बाद उसको बोले चलो यहां साइन मारो, साइन करोगे तो वापस देंगे सामान, नहीं तो नहीं देंगे. तो दीज आर बार्ड, फॉरबिडन. ठीक है, सो विल से दिस इज कवर्ड बाय कोअर्शियन. एनीवन, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? सृजा, रिंजॉय, रौनक, क्या हुआ? क्वेश्चन पूछे तो गायब हो गया रौनक. आयुष, ठीक है. तो क्लियर?
ऐसा कोई भी काम करना जो आईपीसी लास्ट में और इसमें ऐड हो जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऐसा कोई काम करना जो क्रिमिनल लोग का काम है, जो क्रिमिनल में आता है, ठीक है, दैट विल फॉल अंडर कोअर्शन. ओके, नाउ फिर लिखिए कोअर्शन need not necessarily proceed from a party to the contract. पार्टी टू द, ठीक है. अब इसको फिर ध्यान से, ए थ्रेटेंड बी, बोला साइन करो मेरे साथ एग्रीमेंट करो. ए को लगा कि ए डायरेक्ट करेगा तो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, तो व्हाट ए डिड, ए रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड एफ, ठीक है. एफ को बोला तुम जाके उसको थोड़ा टॉनिक दे के आओ, डरा के आओ. ठीक है, एफ बी को जाके डरा दिया. विल इट कम अंडर कोर्शियन, आएगा ये कोर्शियन में. आयुष, आयुष, श्रीजा आएगा. रौनक, आंसर है आएगा. ठीक है, ये सब टीवी न्यूज चैनल में नहीं देखते हो. एक को पकड़ा फिर उसके बाद उसका धुलाई करता है तो दूसरा निकलता है. उसका धुलाई किया तो और दो ठो निकला. अब ठीक है, लास्ट में सबको अंदर बंद करना शुरू करता है. चलो अब आएगा. हाँ ठीक है, गुड. ओके, तो डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो, अगर उसका कनेक्शन है तो पनिशमेंट होगा. अब क्या है, प्रूफ करने का थोड़ा झमेला होता है. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रूफ. ठीक है, ये जो पुलिस पकड़ के ले जाता है, टीवी में लगता है कितना आसानी से हाँ हाँ मान लिया. ऐसा नहीं है, वो लोग को ट्रीटमेंट करके लाया है सबको. ठीक है, तब जाके हाँ बोलता है और बोल देता है जहां गलती किया फिर वहीं ले जाएंगे. अब ठीक है, चलो वापस. तो कोअर्शन need not necessarily proceed from a party to the contract, थर्ड पार्टी के थ्रू भी हो सकता है. ओके, अगेन बिलो इफेक्ट ऑफ कोअर्शन. इफेक्ट ऑफ कोअर्शन सेक्शन 19 हम लोग डिस्कस किए ना. सेक्शन 19 क्या है, इफेक्ट. ये सब के लिए सेम है. कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सबका इफेक्ट है 19. क्या होगा, कैंसल हो जाएगा. ओके, इट विल बी कैंसल. तो इसमें क्लियर लिखा है व्हेन consent to an agreement is caused by coercion, fraud, or misrepresentation, the agreement
में ध्यान से कोर्शियन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन सब लिख दिया. द एग्रीमेंट is a contract voidable. ध्यान से, we have discussed the word void, voidable, void contract. ठीक है, सब एक्सप्लेन करेंगे हम, एक बार नहीं 3 बार करेंगे सब. ठीक है, बस एब्सेंट मत कीजिए या लेट मत कीजिए. ठीक है, I'll explain again. Is a contract voidable at the option of the party? Option of the party whose consent was so caused. ठीक है, इसमें एक खाली लिख लीजिए. बट अंडर सेक्शन 72 a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. ठीक है, अब इसको ध्यान से. When consent to a agreement is caused by coercion, already discussed, coercion, fraud, misrepresentation, ऐसा कुछ है, और उसके अंदर में हाँ बोला है, अगर उसके अंदर में हाँ बोला है तब वो एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा. वॉइडेबल का मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वो एक्शन ले सकता है, जो गलत किया है वो कुछ नहीं कर सकता है. एक गलती किया और बोलता है कोर्ट में भी चले जाएंगे, ये नहीं चलेगा. जिसके साथ गलत हुआ है वो कोर्ट में जा सकता है. इट इज डिपेंडिंग ऑन whom, aggrieved party, to take action or not to take action. It is on him or whom, okay, to take or not to take action. एक पार्टी एक्शन ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता है. ऐसा में उसको वर्ड बोलते हैं वॉइडेबल. वर्ड इज वॉइडेबल. नाउ इसमें अब है सेक्शन 72. अब ये क्या है, लिंक कर दिया गया है. लॉ में क्या होता है, जब कुछ होता है ना तो एक साथ में 5-6 सेक्शन लग जाता है. इसको कैसे समझना है, ये सब आजकल पॉपुलर है. आप देखोगे कोई पकड़ाया, बोला अंडर दिस सेक्शन में इसको हम लोग अंदर कर दिया, तो जो अंदर किया वो भी कंफ्यूज हो जाता, हम तो किया ही, सेक्शन कहां से आ गया. ठीक है, क्लियर. तो सेक्शन 72 क्या बोलता है, बाय मिस्टेक अगर आप किसी को कोई सामान डिलीवरी दे दिए या आपको कोई डरा धमका के कोई सामान रख लिया, उसको वापस करना होगा. चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल. सपोज आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, आपको रास्ता में 4 लड़का लोग रोक लिया, बोला बाइक अच्छा है, आप अच्छा नहीं हो, चलो बाइक मेरा हो गया, तुम घर जाओ. पॉसिबल, क्लियर.
तो ये किस में आएगा, मिस्टेक होगा या कोर्शियन में जाएगा? कोर्शियन में भी जाएगा और थ्रेटनिंग एक्ट भी हो गया. नाउ कैन द बाइक ऑनर go to PSN court? Yes. Can those 4 boys can go to court? No. ठीक है. So this is case of coercion. और एक वर्ड है मिस्टेक. मिस्टेक में भी वन पार्टी, मिस्टेक में भी बोथ पार्टी. एग्जाम्पल ऑफ मिस्टेक. ठीक है. मान लो कोई सामान लेके जा रहा है, आपको पूछा ये एड्रेस कहाँ है, आप बोले क्या करना है, बोला सामान देना है, बोला सामान देना है, यही एड्रेस है, यहीं पर दे दो. ठीक है. बोला यही एड्रेस है, एकदम सामान देने का एड्रेस यही है. सामान ले लिया, बोला जाओ, हो गया, सामान दे दिया. बाद में फिर खोज रहा है कहाँ सामान दे दिया, किसको दे दिया. बोला ऐसा ऐसा बात है, बोला हमको. ओके. तो मिस्टेक हुआ या नहीं हुआ? यस. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मिस्टेक हुआ. समझने में मिस्टेक हुआ. कोई भी मिस्टेक. ठीक है. आप किसी के घर में गए, रेन वाज देयर, रिटर्निंग के समय एकदम ड्राई था, अम्ब्रेला फॉरगॉट. पॉसिबल? यू कैन टेक इट बैक और नो? यस. मिस्टेक. ठीक है. सिंपल एग्जांपल. तो अंडर मिस्टेक और अंडर कोर्शियन. ठीक है. अगेन, मिस्टेक कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो. ठीक है. अगर मिस्टेक को ठीक किया जा सकता है तो उसको ठीक करना होगा. अगर मिस्टेक ऐसा हो गया जिसको ठीक ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो गया काम से, कुछ नहीं होगा उसका. ठीक है. आपके अकाउंट से बैंक वाला 10,000 रुपया डेबिट कर दिया. आप गए भाई, बोले क्यों डेबिट कर दिया? कोरोना का काल है, उसमें 10,000 डेबिट कर दिया. ऐसा क्या किए हम? बोला गलती हो गया. तो क्रेडिट कर दो, हो गया. और जिस पार्टी को डेबिट करना है उसको डेबिट कर दो. अब ये सब होता है, सब होता है. इंडिया में हर चीज ज्यादा होता है. के पास वो मनी गया, वो अगर बैंक में जाके बोले कि हमसे क्यों डेबिट, हम क्या बोले? बैंक का पैसा लेके भाग गया, आया, चोरी किया, भाग गया, डकैती किया, भाग गया. क्या होगा? क्या होगा? पुलिस खोजेगा उसको जाके. होगा क्या? इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, नहीं है तो डूब जाएगा. उल्टा सीधा क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है? सीधा सीधा ना, वो भी उल्टा ही सीधा होता है. उल्टा ही सीधा होता है. लास्ट में क्या होगा? कोर्ट में जाओ, जज को समझ में आ गया तो डिसीजन दे देगा, नहीं समझ में आएगा तो डेट दे देगा, फिर आओ. क्लियर मीनिंग? ओके. लास्ट में डिसीजन लेके भी प्रॉब्लम होता है. तो हम लोग के यहाँ कोर्ट सब है, लास्ट में है ना, बहुत सा क्वेश्चन का आंसर में डिस्प्यूट हो रहा है, उसके लिए हम लोग के लिए कोर्ट बनाया हुआ है. ठीक है. एक बोलता है हाँ, दूसरा बोलता है ना, सही कौन है? बोथ हैव देयर ओन लॉजिक्स. व्हाट इज द सॉल्यूशन? गो टू कोर्ट. कोर्ट में भी डिस्प्यूट है, एक कोर्ट कुछ बोलता है, दूसरा कोर्ट कुछ बोलता है. व्हाट टू डू? बोला लड़ते झगड़ते सुप्रीम कोर्ट तक जाओ. लास्ट में सुप्रीम कोर्ट राइट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, जो बोलेगा ठीक है. क्लियर? मैंने आप लोग को ये सॉल्यूशन. तो डिस्प्यूट में गाड़ी नहीं रोकना है, कहीं गाड़ी रुक जाए वहां छोड़ दो, दूसरे गाड़ी में बैठ के निकल जाओ. ठीक है. पढ़ाई बंद नहीं करना है. कोई डाउट किसी को? ठीक है. केतन,
ठीक है, तो मतलब मीनिंग क्या है, ये कोर्ट हम लोग का डिस्प्यूट के कारण चल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप लोग को होता है, जैसे आप हो ना, आप बोले आपका नाम ये है, तो बोलेगा आपसे हमको मतलब नहीं है, कागज दिखाओ। बोलता है ना, आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपका स्पेलिंग गलत हो गया, तो आपका गलत स्पेलिंग मानेगा ना, सही वाला मानेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तब आप गलत लेके चलो। आप बोले मेरा नाम बदल दिया, हम ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिक्चर देखते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया, जिसका डेथ सर्टिफिकेट वो खुद ही लेके घूम रहा है, भाई हम जिंदा है देखो, सर्टिफिकेट दे दिया हमको। ठीक है, तो ये सब लेके टेंशन में नहीं रहना है, ये सब चलता है। ओके, आप लोग को अलर्ट कर रहे हैं, बहुत सा मन में आता है ना, ऐसा क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन, क्या होगा, होगा जो होगा। क्लियर, गाड़ी नहीं रोकना है, गाड़ी चालू रखना है। आप लोग को इसलिए कि ऐसा बहुत सा दिमाग में आएगा, बहुत सा चीज, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। जो फ्रॉड करने वाला लोग होता है ना, वो लोग ज्यादा बुद्धिमान होता है, ध्यान रखने का है। ओके, दे आर मोर इंटेलिजेंट, लेकिन ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ये सब में पकड़ा जाता है। अगेन, सो अंडर सेक्शन 72 में अगर किसी को पैसा गलती से दे दिया है, जैसे बैंक में क्या हुआ, गलती हो गया, ठीक कर देगा। प्रैक्टिकल में सामान किसी को दे दिए गलती से, ठीक करना होगा। ठीक है, अब है पॉसिबल है तो ठीक कर देगा, पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं। डॉक्टर्स लोग है, गलत दवाई दे दिया, ऊपर पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, अब क्या करे, बोला ठीक करो, कैसे ठीक करे, नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल, बोला इसका रिमेडी नहीं है। गॉट माई पॉइंट। तो रिमेडी है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा है, डॉक्टर का लाइसेंस, डॉक्टर का लाइसेंस ले लो, उसको कंपाउंडर बना दो, पहले डॉक्टर था अब कंपाउंडर है, पॉसिबल। समझ में आ रहा है केस, रिमेडी है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, पनिशमेंट में क्या किया, डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले लिया, अब वो क्या करेगा, नॉलेज तो है लेकिन डिग्री नहीं लिख पा रहा है, या एक्स लिखना होगा कुछ। ठीक है, ऐसा ही चलता है, डोंट वरी। चलो वापस, आई थिंक कोअर्शन मीनिंग इज वेरी क्लियर। So this was section 15, coercion. Now one word is suicide. Okay, so threatening to suicide. Okay, threatening to suicide. Say, son said to father, give me 50,000 rupees. ठीक है, give me 50,000 rupees. Otherwise, I will suicide. ठीक है, तो फादर ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, नहीं मान रहा है, बोलता पैसा दो नहीं तो सुसाइड। तो फादर एनी हाउ मैनेज, बोला ठीक है एक दिन का टाइम दे दो, कल देंगे लाके पैसा। बोला एग्रीड, बोला एग्रीड, बोला लिख के दो, बोला लिख के दे दिया, कल दे देंगे। व्हेन नेक्स्ट डे केम, सेड नो मनी। Will this suicide amount to coercion? होगा,
पिक्चर में नहीं देखते हो, टंकी के ऊपर चढ़ जाता है, बोलता है छलांग मारेंगे। बात मानो मेरा सब कोई होता है ना। विल दिस अमाउंट टू कोर्शियन? आस्था कोर्शियन में आएगा कि नहीं? हाँ रौनक, अच्छा चलो, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद यस नो में आएंगे। उसको पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर सकता है ऐसा केस में जो बोला छलांग मारेंगे? कैन पुलिस अरेस्ट? यस और नो? अगर अगर जेल में बंद किया, बोलेगा कोई गलती नहीं है तो हमको बंद क्यों कर रहा है, तो गलती है या नहीं है? है। ठीक है, ये सब बार्ड बाय लॉ है, वन कान डू, नॉट अलाउड। ठीक है, कमिटेड और थ्रेटन टू कमिट। ठीक है, कमिटेड और थ्रेटन टू कमिट, क्लियर? तो थ्रेटनिंग टू सुसाइड अमाउंट टू कोर्शियन, क्लियर? तो माने you will not get remedy, cancel, instead legal action can be taken, instead legal action can be taken again. So suicide, this point is clear. So one word is coercion, other write down word undue influence. Undue influence, section 16. Now before writing, undue influence means one is using the position, utilizing his position and taking the advantage. ठीक है, relationship is such that can take the advantage, we will say undue influence is involved. So undue influence meaning taking advantage of the position, taking advantage of the position. ठीक है, इसमें कैसे समझना है, ध्यान से। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप may take some advantage, father son may take some advantage, religious advisors and disciples. ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे समझना है, बहुत सा बाबा लोग हैं, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाबा लोग, ऊपर से इन लोग का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो दे कैन टेक सम एडवांटेज, माने देयर आर सम फॉलोअर्स, ब्लाइंड फॉलोअर्स जिसको बोलते हैं, आंख बंद करके। ठीक है, देन ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मालिक है, बेनिफिशियरी कोई माइनर है, वो जो बोलता है मान लेता है, अगर नहीं मानेगा तो उसका बंद कर देगा इनकम, पॉसिबल। तो दे कैन टेक सम एडवांटेज। ओके, नाउ इसमें मोर है एडिशन, एडवोकेट्स एंड क्लाइंट्स, एडवोकेट्स एंड क्लाइंट्स, इवन डॉक्टर पेशेंट, सम केसेस, अगर डॉक्टर का पेशेंट है और कोई एग्रीमेंट हो रहा है, डॉक्टर एंड पेशेंट, then only this rule will apply, otherwise no.
मान लो डॉक्टर है बट ही इज नॉट हिज पेशेंट, देन रूल विल नॉट अप्लाई. एडवोकेट ही इज नॉट हिज क्लाइंट, rule will not apply. Clear? Now another situation is teacher and student, whether this law will be applied or no. Yes or no? चलो आप लोग का आंसर देखें. आंसर इज नो. ठीक है, आजकल अप्लाई नहीं होता है क्योंकि बच्चा लोग बात नहीं सुनता है. ठीक है, इसमें यस मत कीजिएगा, लिखिएगा नो. ओके, फायदा होने से सुनता है, नुकसान होने से नहीं सुनता है. एंड ब्लाइंड फॉलोअर्स का मतलब होता है फायदा नुकसान नहीं, जो बोला करना है. व्हाट इट? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन इट इज एप्लीकेबल. क्लियर? एग्जाम में जानबूझकर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो लोग. ओके, तो डोंट बी ब्लाइंड फॉलोअर्स. आप लोग के लिए यही है, डोंट बी ब्लाइंड फॉलोअर्स. ठीक है, अगेन, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पोजीशन. लिखिए, when the relation between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other, dominate the will of the other, and uses that position to obtain an unfair advantage over the other, over the other. ठीक है, in the following cases one can dominate the will of the other. A. Actual or express authority. B. Judiciary relationship. C. Mental weakness. मेंटल वीकनेस. ठीक है, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस. नीचे लिखिए रिलेशंस which raises presumptions
of undue influence. Parent and child. Second, guardian and ward. Trustee and beneficiary. Fourth, religious advisors and disciple. Fifth, doctor and patient. Sixth, solicitor and client, etc. Okay. Burden of proof. Plaintiff. Burden of proof. Plaintiff. Now, जब भी कोर्ट में केस होता है तो एक पार्टी पहले केस करेगा, फिर दूसरा पार्टी आएगा. फर्स्ट पार्टी गोइंग टू कोर्ट known as plaintiff and other party known as defendant. फर्स्ट पार्टी को प्लेंटिफ बोलते हैं, अदर पार्टी को डिफेंडेंट बोलते हैं. जो पार्टी पहले कोर्ट में जाएगा वो प्लेंटिफ है, सेकंड वाला डिफेंडेंट है. ठीक है. अगेन, below example already we have discussed. Now, in the following cases, one can dominate the will of the other. So, when one can dominate the will, मतलब जो बोलेगा वो चाहेगा, जो चाहेगा कर लेगा. ठीक है. ऐसा कब? पहला है एक्चुअल और एक्सप्रेस अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब पावर. ठीक है. इसको कैसे समझना है? मान लीजिए आपके ऑफिस में आपका बॉस, उसको पावर है. ठीक है. तो यू आर टोटली डिपेंडिंग, योर सर्विस डिपेंडिंग ऑन हिम, योर जॉब डिपेंडिंग ऑन हिम. So what happens? Other is in a position to dominate the will of the below authority. Possible. So one can say that utilizing the undue influence, clear? Possible. Second, judiciary relationship. Judiciary relationship का मतलब लॉ, लीगल. लॉ में उसको पावर है, कोर्ट्स. ओके. थर्ड, मेंटल वीकनेस. मेंटल वीकनेस में किसी का मेंटल अगर वीक है, उसको आप चाय पिलाए, थोड़ा सिंघाड़ा खिला दिए, ठीक है, 2-4 दिन खिलाए, 5वां दिन से आपके आगे पीछे राउंड मारना शुरू कर दिया वो. ठीक है. आप उसको जो बोले करता है. पॉसिबल? मैंने सिंपल आंसर. तो मेंटल वीकनेस, या आप उसके माइंड को थोड़ा समझाए, राइट को रॉन्ग बोलना है, रॉन्ग को राइट बोलना है, लास्ट में बोला जो बोलोगे वही बोलना है. ठीक है. समझा दिए, समझ गया. मेंटल उसका वीक है. वन कैन डोमिनेट द विल. मीनिंग क्लियर? आयुष, मीनिंग क्लियर है? एक्चुअल और एक्सप्रेस अथॉरिटी. एक्चुअल और एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब
आपके पास स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ एकदम, आप जो बोलोगे नीचे वाला को बात मानना पड़ेगा। तो अब आपका बात मानना पड़ेगा, आप उसके विल को डोमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसको बोलते एक्चुअल और एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब क्लियर कट और सही में है, एक्चुअल में है, इसको बोलते हैं एक्चुअल और एक्सप्रेस अथॉरिटी, ठीक है। आप ऐसा सोचो, आपको बॉस बना दिया गया और आपको कागज में लिख के एकदम दे दिया गया कि आप अपने अंडर में 2 आदमी रख सकते हो, आप जैसा चाहो उससे काम करा सकते हो, पॉसिबल, एकदम स्टैम्प पेपर में। अब वो दोनों आदमी आपका जो बात है यस में यस करेगा कि नहीं करेगा? यस मैन, पॉसिबल। तो दैट इज एक्चुअल और एक्सप्रेस अथॉरिटी। क्लियर मीनिंग? एंजॉय। चलो ठीक है, जो डाउट कंफ्यूजन होगा पूछना है। जुडिशियरी रिलेशनशिप का मतलब लॉ में ऐसा है, हायर का बात लोअर को मानना पड़ेगा, लॉ में ही लिख दिया है, उसके लिए अलग से आपको लिख के कुछ नहीं देना है, एम्प्लाइड, दैट इज जुडिशियरी रिलेशनशिप। मेंटल वीकनेस मीनिंग आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये रूल कब होगा? जो कोर्ट में जाएगा उसके बिहाफ में लॉयर बोलेगा मेरा क्लाइंट का मेंटल थोड़ा वीक है, ये सर्टिफिकेट है मेंटल वीक का सर्टिफिकेट है, ठीक है। डॉक्टर लोग सर्टिफिकेट इशू करता है, आंसर है हाँ। जैसे कोई पागल है तो उसका मैड सर्टिफिकेट इशू होता है। कोई मेंटल वीकनेस है, उसका मेंटल वीकनेस का, ये सबको डिफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। आजकल नया फॉर्मूला चला है, ठीक है। डॉक्टर लोग के पास जाओगे, बोलोगे बहुत बुद्धिमान है, तो आपको दवाई देगा, बुद्धि कम यूज होगा समझ गए? ये जो वर्ड डिप्रेशन सुने हैं ना, तो डिप्रेशन ये फालतू वाला जो बीमारी होता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। मन लायक काम नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में चला गया समझ गए? मैंने आप लोग को सावधान कर रहे हैं, ये सब गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, ये फालतू वाला बीमारी है, इसका इलाज बस डॉक्टर इलाज करते रहता है, ओके। अलर्ट कर रहे हैं सबको, मन लायक काम नहीं हुआ, बस बोले थोड़ा डिप्रेशन में चला गया है। डिप्रेशन मीनिंग समझ गए? आप लोग के आसपास किसी का केस सुने होंगे तो पता चलेगा यही है डिप्रेशन का मतलब, ठीक है। मैंने कोई सोचा एमबीए कर लेंगे 5 लाख रुपया महीना मिलेगा, एमबीए कर लिया, 5 लाख में 2 जीरो गायब कर दिया, ठीक है। या उसको 10, 15, 20 हजार रुपया महीना दे रहा है, बोला 10 लाख रुपया दे के एमबीए पढ़े और 20 हजार में वो क्या हुआ, डिप्रेशन में चला गया है। मैंने हम आप लोग को सावधान कर रहे हैं, ठीक है, अवेयर, ये सब गलतफहमी में नहीं जाना है, बी प्रैक्टिकल, ओके। तो अगेन कमिंग बैक टू, तो ये एक नया बीमारी है। एनीवे अगर सर्टिफिकेट है मेंटल वीकनेस का तो आप बोल सकते हो मेंटल वीकनेस। तो मेंटल वीकनेस बोल के आप एमबीए वाला इंस्टीट्यूट में पहुंच गए, बोले फीस वापस करा दो वापस होगा? वो बोलेगा जब आया था तब पूरा मेंटल था, वीकनेस बाद में आया है, ठीक है। अब नहीं हो सकता है, अब अगर हम लेगा मेंटल वीकनेस में तब हम वापस करेगा, ठीक है। आप लोग को हम थोड़ा अलर्ट कर रहे हैं वापस। तो रिलेशनशिप विच रेज प्रिजम्पशंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, पेरेंट चाइल्ड गार्जियन वार्ड। गार्जियन वार्ड का क्या चक्कर है?
पेरेंट के जगह किसी को गार्जियन बना दिया गया। अब जो वार्ड है उसको तो मालूम है सब पावर इसी के पास है, फिर से रिस्क है। दैट इज गार्जियन एंड वार्ड। ओके, तो बर्डन ऑफ प्रूफ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको लॉस हुआ है वो जाएगा, वो बोलेगा कोर्ट को ऐसा ऐसा हुआ। इन दिस रिगार्ड one interesting case situation is there. Write down contracts with पर्दा नशीन woman. Contracts with पर्दा नशीन woman. Now, what do we mean by पर्दा नशीन woman? Who will answer? कौन आंसर देगा? मनाली? हाँ, फिर से बोलो। मीन्स वुमन अंडर बुरखाज, मोहम्मदन लेडी अंडर बुरखाज। ठीक है, विल ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्दा नशीन वुमन। अंजलि बोलो। नो बोलने से खाली नहीं होगा। हु इज कमिंग अंडर पर्दा नशीन वुमन कैटेगरी? बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड फॉरवर्ड बोल के कुछ नहीं होता है। ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब कुछ नहीं है। फिर से ट्राई, लॉ में हम लोग हैं। पर्दा नशीन वुमन, दिस मीनिंग इज ऑर्थोडॉक्स, एकदम पुराने जमाने का, ऑलवेज अंडर बुरखा पर्दा, दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, दे माने मूव विद इन लिमिटेशन, दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ मार्केट। ठीक है, वन एग्जाम्पल गिविंग यू, सपोज इन कोलकाता, ओके, सम रिमोट एरिया साइड में, one पर्दा नशीन woman, to that woman a person said, उसको बोला गया, that under inheritance she has a landed property in Park Street, पार्क स्ट्रीट में उसका कुछ जगह है। ठीक है, तो दे वांट टू बाई, उसको वो लोग खरीदना चाहता है। और बोला, शी आस्क्ड, क्या है, कैसा जमीन है? बोला पार्क है, एक स्ट्रीट बगल से गया हुआ है। ठीक है, इसलिए उसका नाम है पार्क स्ट्रीट। ठीक है, पार्क बगल में स्ट्रीट, बोला पार्क स्ट्रीट, पैदल जाना होता है। और उसको 10,000 रुपया दिया और लैंड परचेज कर लिया। क्लियर? After the deal was over, everything over, then she came to know something wrong. ठीक है, उसको ना पार्क नजर आया, ना स्ट्रीट नजर आया, कुछ नजर नहीं आया। She will simply go to court and say that they have explained me Park Street meaning. I did it. Okay, then court will ask with the other party explain.
court will ask with the other party to explain. So interesting is, normally who has to prove? Answer is plaintiff. With Parda Nashin woman, plaintiff will simply go to court. Defendant has to prove that it is right. Clear meaning? Okay? So I think very clear. तो ये सब केस होने से दूसरे पार्टी को प्रूफ करना पड़ता है. खाली प्लेंटिफ चला जाएगा कोर्ट, अदर पार्टी को प्रूफ करना होगा दैट प्राइस इज एडिक्वेट, सही प्राइस में दिया गया है, कम नहीं किया गया है. कैसे खरीदते जा सकते हैं, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी? हाँ, क्या चीज? आप स्ट्रीट बोले ना, एक आदमी कैसे स्ट्रीट खरीद सकता है? स्ट्रीट तो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है. पार्क स्ट्रीट का मतलब आपका जगह है, जगह पार्क स्ट्रीट में है, रास्ता नहीं खरीदना है. रास्ता के बगल वाला, उसका डेफिनेशन पूछा उसको, तो बहुत लोग को लगता है नाम और मैच कर रहा है, ठीक ही होगा. ठीक है, ये सब भी होता है. तो देन अदर पार्टी हैज टू सिंपली, माने वन विल गो, अदर हैज टू प्रूव. व्हाट कोर्ट विल डू? कैंसल इट. ठीक है, मतलब वन शुड नॉट टेक एडवांटेज. ठीक है, अगेन फिर लिखिए, rebutting the presumption of undue influence. ठीक है, ऐसा होने से तब क्या होगा? कोई बोलेगा भाई हम तो एग्रीमेंट ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं, कब ये कोर्ट चला जाएगा कोई ठीक नहीं है. ठीक है, जैसे माइनर के साथ हम लोग डिस्कस किए थे, माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही वॉइड है. ठीक है, तो वो कहीं जाएगा, कोई एग्रीमेंट, सब बोलेगा नहीं भाई तुम मेजर हो जाओ फिर आना, तो उसका तो खाना पीना बंद हो जाएगा. माने नो वन विल इंटर. तो आंसर वाज फॉर नेसेसरीज लायबल, फॉर नेसेसरीज लायबल, नेसेसरीज के लिए लायबल होगा. ओके, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो. ठीक है, अगेन, तो रिबटिंग द प्रिजम्पशंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. ओके, कब कोई पार्टी जाएगा तो आप बोलोगे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है. कब बोलेंगे? जब बोलेंगे वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग क्लियरली, नथिंग हिडन, इट वॉज एक्सप्लेन्ड. ठीक है, अगर आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो, कोई हिडन वाला बात नहीं है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कोर्ट में, ऐसा नहीं है कोई कोर्ट में जाएगा तो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है. कोर्ट में both party hearing will be there, then decision will be given. ठीक है, so you can say we have not done anything wrong. He was aware of, he was. ठीक है, मान लो अभी जाके बोल रहा है पार्क और स्ट्रीट, वो बोलेगा उसको लेके हम लोग जगह पर गया था, उसको पार्क स्ट्रीट जो भी हम लोग समझाया दिखाया था, ये आप फोटो देखो. ठीक है, तो वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. नाउ शी इज गोइंग बैक, व्हाट कैन वी डू? दिस इज द प्रूफ. ही इज सेइंग शी डोंट नो, दिस इज द प्रूफ, शी नोज एवरीथिंग. पॉसिबल? अब क्या होगा? केस खराब हो गया. अब
केस चेंज हो जाएगा ना। तो ऐसा में आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू? तो ये सब भी है, बिकॉज अदरवाइज टोटल रिस्ट्रिक्शन, तब तो इवन एवरीथिंग यू हैव बट यू कैन डू एनीथिंग because no one will enter into agreement. So rebutting the presumptions, write down full disclosure of facts was made. The price was adequate. The other party was free to take independent advice. Okay, ठीक है। Clear? So full disclosure was there, the price given is adequate, and third, other party is free to take independent advice. ठीक है, other can consult with anyone, then say yes no. So in this case, if you can prove these three, there is no undue influence. No undue influence. That's why if you go through the language, of the agreement, उसके अंदर में लिखा रहता है, ठीक है, एकदम ऑफर किया, अगला एक्सेप्ट लिया, प्राइस एडिक्वेट माना, के समझे, सब कुछ लिख देता है, फिर भी लोग कोर्ट में पहुंच जाता है। बोला क्यों? बोला हमको पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, बोला साइन करना भी नहीं आता है, एकदम थंब वाला हिसाब है। व्हाट माय पॉइंट? मतलब डिस्प्यूट का एंड नहीं है, रेमेडी क्या होगा नहीं होगा बाद का चीज है। गॉट इट? तो फिर बोलेगा एडवोकेट आपका था, तो बोला वो भी मिला हुआ था। ठीक है, वो भी मिला हुआ था। अब फिर नया डिस्प्यूट, अब वकील का अलग से डिस्प्यूट शुरू होगा। तो ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका भी सॉल्यूशन है। कोर्ट में जब रजिस्ट्री होता है ना, मैंने आप लोग को दे रहे हैं, ये सब चीज होता है, तो जो रजिस्ट्रार होता है ना, जो सेल करता है, उससे पूछेगा तब ठीक है, पैसा मिल गया। व्हाट माय पॉइंट? तो वो बोलेगा हाँ हाँ, सब हाँ बोला, ठीक है जाओ। अब नहीं पूछा, नहीं आंसर दिया, वो सब अलग बात है। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर? सो number of things are there. The other party was free to take independent advice. चलो, till now whatever done, ask. ठीक है, चलो इसके अंदर एक वर्ड और लिख लो, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 19 we know,
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इफेक्ट क्या होगा? वॉइडेबल. वॉइडेबल मीनिंग ऑलरेडी हर्ट, वी हैव नोन, डिस्कस्ड. तो जिसको लॉस हुआ है वो कोर्ट में जाएगा, बोलेगा कैंसिल करो. दे विल से कैंसिल. ठीक है. अब है कैंसिल होगा नहीं होगा. इंडिया है, सब कुछ होता है. इंडिया है, सब कुछ होता है. इवन गवर्नमेंट सेल्स द प्रॉपर्टी. कौन बेचा? गवर्नमेंट. लास्ट में वो भी कैंसिल हो जाए. ये समझे? ऑल पॉसिबल. ये सब का क्या होता है आंसर? ऑल पॉसिबल का आंसर लास्ट में एक वर्ड आता है, पब्लिक इंटरेस्ट. क्या आता है? पब्लिक इंटरेस्ट. ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? आप लोग को बहुत काम का चीज है सब भाई, सब लॉ में एक्स्ट्रा नॉलेज. ठीक है. ये सब बस हम ही से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा. मान लो आप एक लैंड परचेज किए, बड़ा सा जगह. ठीक है. माने से 1 एकड़. 1 एकड़ में कितना कट्ठा होता है? चलो बोलो जिसको मालूम है. 1 एकड़ में कितना कट्ठा होता है? कितना कट्ठा? एकड़ में 1 एकड़. एक होता है एकड़, वो एक होता है बीघा. ठीक है. 1 एकड़ में 60 कट्ठा होता है. ठीक है. चलो अब उसमें हम लोग नहीं जाते हैं. फिर आजकल मेजरमेंट का भी बहुत झमेला है. इंडिया में हम लोग का मेजरमेंट सिस्टम स्पेशल है. ओके. चलो 60 कट्ठा. रौनक आंसर दिया है, गुड. तो 60 कट्ठा जो है होता है. ठीक है. तो 60 कट्ठा तो बहुत बड़ा जगह हो गया. आप एक जगह परचेज किए, बोले ये करेंगे वो करेंगे, जो भी करेंगे. 10 साल तक कुछ नहीं किए. पता चला वहां का आदमी लोग फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया. ठीक है. क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन शुरू हो गया. लास्ट में आप गए, बोले यहां पर अब थोड़ा घर बनाएंगे. वहां पर सब पूरा मोहल्ला आपके पास आ गया. बोला नहीं, इसमें हम लोग फुटबॉल खेलेगा. ठीक है. फिर कहां से बगल वाला 2 लीडर लोग आ जाएगा. बोला हाँ ठीक है, इन लोग हमको वोट देता है, इन लोग फुटबॉल ही खेलेगा. ठीक है. अब आप बोला नेक्स्ट संडे मैच है, आपको भी बोल दिया आ जाना देखने के लिए. आप बोले जमीन मेरा, पैसा मेरा, जगह मेरा, हमको मैच दिखला रहा है. ठीक है. लास्ट में आप थाना पुलिस में गए. थाना पुलिस बोला भाई हम क्या करें, आप एकदम सही हो, आप कोर्ट जाओ. आप कोर्ट में गए. कोर्ट में गए, वहां से अपोनेंट को जगह देना होगा ना. तो अपोनेंट में पूरा मोहल्ला कोर्ट में पहुंच गया. बोला फुटबॉल खेलेंगे. समझे? बोला यहां नहीं खेलेंगे तो कहां खेलेंगे, हम लोग को दूसरा जगह दो. बोला नहीं है, तो बोला यहीं खेलेंगे. फिर हम लोग का लॉ स्पेशल है. बोला बात सही है, फुटबॉल खेलो. ठीक है. और आपका जगह गया काम से, अब वहां फुटबॉल ग्राउंड बन गया. तो पैसा दे देंगे. बोला पैसा कहाँ है जो देंगे, हम लोग गरीब आदमी खाली फुटबॉल खेलते हैं. जगह आपका, फुटबॉल वो लोग खेलेगा. समझ गए? ये हम लोग का सिस्टम है. बोला क्या? बोला पब्लिक इंटरेस्ट. बोला हम आपका देखेगा ना, सबका देखेगा.
ओके, तो आप लोग को इससे समझ में आ गया, ज्ञान बहुत मिल गया। ठीक है, कोई चीज लेने से ज्यादा दिन रखना नहीं है, नहीं तो फुटबॉल खेलना शुरू कर देगा साहब। ओके, सामान बेच दिया, ज्यादा समय हो गया, फिर से प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, रौनक का क्वेश्चन है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ऐसा पोजीशन होता है जिससे आप एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक द एडवांटेज। क्लियर? एंड position required, then only we'll say undue influence is there, otherwise no। ऐसा नहीं है कि जो भी आप किए गलत किए। ओके, तो नंबर ऑफ टाइम्स situation wise we have to take decision, so whether it is coercion or it is undue influence, one has to take care again। so difference between coercion and undue influence। Difference between coercion and undue influence। Coercion, threat of an offense। Moral influence, ठीक है, इसको कैसे समझना है? थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस, डराना धमकाना, ये सब काम हुआ थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस। मोरल इन्फ्लुएंस मतलब आपको डराएगा धमकाएगा नहीं, उसके जगह अपना पोजीशन का यूज करेगा। ठीक है, तो दैट इज मोरल। टू, फिजिकल कैरेक्टर, मोरल कैरेक्टर। ठीक है, फिजिकल एंड मोरल। intention of causing any person to enter into an agreement where party uses his position to obtain unfair advantage over the other party। ठीक है, फोर्थ, criminal act, no criminal act।
criminal act, no criminal act. ठीक है, criminal act, no criminal act. So this is the difference. ठीक है, this meaning is itself clear. Criminal act means CRPC, Code of Criminal Procedure. अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये नहीं लागू होगा. ओके, क्रिमिनल एक्ट इज नॉट देयर. नाउ here another interesting is one word is duress. One word is, anyone, any idea? duress. किसी को कोई आइडिया? अभिषेक, कोई आइडिया? अभिषेक, रूपकथा, केतन, चलो कोई बात नहीं. तो इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड, वर्ड इज ड्यूरेश. हम लोग यहां वर्ड यूज करते हैं कोर्शियन. देयर दे यूज द वर्ड ड्यूरेश. जैसे इंडिया में आपके पास फोन आया, फोन में आपको डराया धमकाया, ठीक है, ये कर देंगे वो कर देंगे, और आप डर गए. अब कहाँ जाओगे? पीएस, पुलिस स्टेशन, ऐसा फोन आया, इतना नंबर से फोन आया, हमको ऐसा बोला वैसा बोला, अपना बोलोगे. ठीक है. नाउ लीगल एक्शन कैन बी टेकन और नो? आंसर यस. सेम थिंग इन इंग्लैंड. ठीक है, लंदन में आप गए, ठीक है, वहां फिर आपको फोन आया, फिर आपको डराया धमकाया. आप लंदन में अभी हो, लंदन से ही फोन आया, आप क्या करोगे? फिर जाओगे पीएस, बोलोगे लोकल से हमको डराया धमकाया. तो वहां पर क्या बोलेगा? फोन में डराया, आप भी उसको डरा दो. बोला कुछ किया? बोला नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ फोन में ही किया जो करना है. बोला ठीक है, आप भी फोन से उसको डरा दो. जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक कोई बात नहीं है. खाली बोलने से कुछ नहीं होगा. वो बोला, आप भी बोल दो. ठीक है. तो इन इंडिया, डन और टू बी डन, ठीक है, कमिटेड और प्रिटेंड टू कमिट, दोनों आ रहा है. ठीक है. वहां बोलेगा किया, बोला नहीं, बोला घर जाओ. तो वहां थ्रेटेन टू बी डन नहीं होगा, डन पर होगा. क्लियर? ओके. इंडिया में भी लास्ट में जब केस बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, मान लो डेली सबको सब कोई डरा रहा है फोन में, फिर लॉ बदल जाएगा, बोलेगा ये वाला अब नहीं चलेगा, एक्चुअल वाला होगा. ठीक है. इंपॉर्टेंस फॉल्स, ये सब जब होता है ना, तो फिर उसका इंपॉर्टेंस कम होने लगता है. फिर कोर्ट जो है वो भी उसको वेटेज नहीं देता है. क्लियर? तो अगेन, सो वर्ड ड्यूरेश. ओके. चलिए और एक अब नया वर्ड में आते हैं हम लोग, फ्रॉड. अंडर सेक्शन 17,
fraud under section 17. Now, before moving into fraud writing part, say some discussion. What is fraud? Simple answer. Telling lie. झूठ बोलना. ठीक है? But one thing we have to remember, no loss, no fraud. मान लो आपके साथ कोई फ्रॉड करना चाहता है, आपको बहुत समझाया, ठीक है, 2-4 घंटा समझाया, आप सब समझ गए कि ये कुछ भी नहीं, घर चले गए. इज देयर फ्रॉड? बिकॉज नो लॉस, नो फ्रॉड. क्लियर? तो नो लॉस, नो फ्रॉड. क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है. अब फर्दर फ्रॉड में टेलिंग लाई, झूठ बोला, अदर पार्टी उस पर विश्वास किया, बिलीव, एक्टेड, जो बोला किया, एंड लॉस, एंड लॉस. ठीक है? Then only will say fraud. And intention was wrong. Now, telling lie. कोई झूठ कैसे बोल सकता है? अब लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा. Knowing it is false, but saying it is true. Telling lie or no? Yes. Knowing it is true, saying it is false. मालूम है सही है लेकिन बोल रहा है झूठ है. Fraud or no? माने telling lie. Telling lie will come under fraud. This will also eligible. Not knowing whether it is true or false. मालूम नहीं है सही है कि गलत है. But saying it is true. Telling lie or no? Telling lie or no? Ronak. एग्जाम में टिक मारना होगा तो एक ही में मारेंगे ना 2-3 में मार देंगे. आयुष. आंसर इज यस. मालूम नहीं है लेकिन वो हाँ बोल रहा है. जब मालूम नहीं है तो हाँ क्यों बोल रहा है? Whether telling lie? Yes. Can be true also. Okay. If you don't know whether it is true or false, but saying it is true, ठीक है? और एक वर्ड है recklessly. What is recklessly? मान लो आपसे बोला वहां पर एक मकान है, 2 तल्ला मकान है, ऐसा ऐसा है, कैसा है? ठीक है. आपको ना मकान मालूम है ना 2 तल्ला मालूम है, कुछ नहीं मालूम. बोला हाँ ठीक है. कुछ नहीं मालूम है, खाली बोल दिया हाँ. सही है गलत है कुछ नहीं, अच्छा ही हवा में हाँ. Telling lie or no? Again yes. Known as recklessly. These are all falling in the category of fraud. ठीक है? अब है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या होता है, ध्यान से एकदम. ये सब प्रैक्टिकल लाइफ का है. आजकल मार्केट में बहुत सा ब्रोकर लोग घूमता है, घर मकान दुकान बेच रहा है, खरीद रहा है. ठीक है? मान लो आपका कोई जगह है, उसको आपको भाड़ा में देना है या बेचना है. ब्रोकर एक आदमी को पकड़ के लाया, बोला ही इज रेडी टू बाई. ठीक है?
मैंने एकदम प्रैक्टिकल है ये सब। आप ब्रोकर को बोले डू यू नो हिम, बोला हाँ 25 साल से हम जानते हैं, अभी 2 घंटा पहले मिला है उससे। ब्रोकरेज के लिए क्या बोल दिया, 25 साल से जानते हैं। पॉसिबल? सिंपल। टेलिंग लाई और नो? ठीक है, ये सब होता है, आंसर होता है। अभी मिला 2 घंटा पहले, 25 साल उसमें ऐड हो गया, तो आंसर इज टेलिंग लाई। तो नाउ द थिंग इज, आया, बात किया, कुछ नहीं हुआ, नो फ्रॉड नो लॉस, बट समथिंग हैपेंड एंड लॉस। पॉसिबल? ठीक है। और ये सब चीज क्या है, बीच बीच में आप न्यूज़पेपर, न्यूज मैगजीन, न्यूज, ये सब में आते रहता है। आंसर है होता है, आंसर है सब होता है। ओके। फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो फ्रॉड। आजकल कंप्यूटर का समय है, ठीक है, फोटो बदल दिया, नाम बदल दिया, एड्रेस बदल दिया, खाली काम का चीज छोड़ दिया। पॉसिबल? नाउ डन फ्रॉड, आंसर यस, डन फ्रॉड। क्लियर? अगेन, इंडिया में एक बार एक केस हुआ था, तेलगी केस, नाम सुने हैं कभी? उसको फेमस था, तेलगी केस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये सब 15-20 साल पहले का केस है। वो क्या हुआ था मालूम है? वो स्टैम्प पेपर का मशीन ही चुरा के ले गया था। ठीक है, ऑक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेच दिया सेकेंड हैंड में, और उसको ले जाके चालू कर दिया, स्टैम्प पेपर छापने लगा। 20,000 का स्टैम्प पेपर, 10,000 का स्टैम्प पेपर, ऑल इंडिया को 50,000 करोड़ का स्टैम्प पेपर निकाल के दे दिया। सबका घर रजिस्ट्री हो गया, ठीक है। लास्ट में गवर्नमेंट को मानना पड़ा सब नकली को असली है। गवर्नमेंट हैज टू सरेंडर बिकॉज दे डोंट हैव सॉल्यूशन, दे डोंट हैव सॉल्यूशन। मतलब कोर्ट का रजिस्ट्रार उसमें स्टैंप वगैरह मारा, हाँ सही है सही है सही है, व्हाट पब्लिक कैन डू? गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा, गवर्नमेंट, और उसको पकड़ लिया, उसका घर मकान दुकान बेच दिया, जो मिला मिला, नहीं मिला। बाकी क्वेश्चन है वैलिड, आंसर है रॉन्ग को राइट मानना पड़ा, ठीक है। सो देयर आर सिचुएशंस, नंबर ऑफ टाइम्स fraud is there, government helpless, okay, and have to accept, nothing to do, कुछ करने का नहीं था, government has to accept। clear? again, ठीक है। तो fraud under section 17, okay। So how to do fraud meaning is clear? Ronak, will silent amount to fraud? कोई पूछा गलती किया, बोला चुप है, कुछ नहीं बोलता है, इज इट फ्रॉड? मैंने फ्रॉड बोलेंगे उसको? फर्स्ट आंसर इज नो। मान लो कोई गलत किया, बोला बोलने से भी तो गलत है, नहीं बोलेंगे तो शायद बच जाएंगे, पॉसिबल? तो उसको एक एडवोकेट बोल दिया देखो बोलना मत, एकदम डीप एंड डम, सुनाई देता है लेकिन बोलना नहीं है, तो लास्ट में कोर्ट क्या होगा, उसको लास्ट एक चांस देगा,
If you don't speak, it will be assumed you have done fraud. फिर कुछ नहीं बोला. तो फ्रॉड मानेंगे या नहीं मानेंगे? रौनक, मानेंगे आप? मतलब कुछ डेट सब पढ़ेगा, 4 5 10 बार उसको बुलाएगा ले जाएगा, बुलाएगा ले जाएगा, लास्ट में जब फाइनल, मान लो कोई टेररिस्ट को पकड़ा, उससे क्वेश्चन आंसर बोलता है, बोला हमको बोलना नहीं आता है सुनते हैं बोलते नहीं है तो लास्ट में उसको क्या छोड़ देगा? उसको अपॉर्चुनिटी देगा, बोलो कुछ बोलना है, क्यों किया, ऐसा किया वैसा किया, बोला कुछ नहीं बोलेंगे तो लास्ट में क्या छोड़ देगा उसको? लास्ट ऑप्शन देगा, अब भी नहीं बोलने से फाइनल डिसीजन हो जाएगा. ठीक है, एडवांटेज मिलेगा शुरू में, 2-4 डेट एक्स्ट्रा ले लेगा, बट फाइनली विल बी पनिश्ड. ठीक है, इट वर्क्स इन दिस वे. अगेन, तो will concealment amount to fraud? Will concealment amount to fraud? जैसे 10 क्वेश्चन पूछा, 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, पूछा नहीं, बोला नहीं. सपोज कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं. मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है, यू हैव टू बाई अ हाउस. आप उस घर में गए जिसको खरीदना है, घर में ऑनर था, ऑनर को आप पूछे, आप मालिक को, बोला एकदम डाउट है क्या, घर में है, बोला पेपर है, बोला है, आपको जेरोक्स पेपर दे दिया. कोर्ट में आप सर्च किए, बोला एकदम सही बात है, वकील भी सर्च किया, क्लियर. बोला म्युनिसिपल टैक्स में रजिस्ट्री है, आप बोले हाँ, उसका भी पेपर दे दिया. मकान का वैल्यू कितना है, बोला 1 करोड़, आप बोले 90 लाख, बोला डन. ठीक है, 90 लाख में घर खरीद लिए, वो चला गया, आप घर में रहने लगे. 1 वीक बाद बैंक से एक लेटर आया, 80 लाख का लोन है. आप बोले ये कहाँ से आ गया, वो तो बोला नहीं हमको. उसको पकड़े तो बोला पूछा नहीं, बोला नहीं हमसे पूछा नहीं इसलिए हम बोला नहीं. इज इट फ्रॉड? क्वेश्चन है, इज इट फ्रॉड? ध्यान से आंसर दीजिएगा. आस्था, किन्नौरी, मनाली, रूपकथा, केतन, श्रीजा, अभिषेक. तो सबका आंसर यस है, आंसर भी यस है. तो क्या होता है, ये सब एग्जाम्पल है जिससे मीनिंग क्लियर है. तो साइलेंट ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड, कंसीलमेंट ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड, बट फर्स्ट में नहीं होगा, फर्स्ट में नहीं होगा. बट when it becomes their duty, when it becomes their duty, then also if they don't fulfill, then this will amount to fraud. तो उसको फ्रॉड में ले लेंगे हम लोग. आई थिंक वेरी क्लियर. तो कंसीलमेंट ऑफ मेटेरियल फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ मतलब 1 करोड़ का है, उसमें 80 लाख लोन है, बताया नहीं, ये फ्रॉड है. अब मान लो ऐसा हुआ, घर खरीद लिया, लास्ट में एक लेबर आया, बोला काम कराया था, 50 रुपया बाकी है दिया नहीं था, घर बेच के भाग गया, मेरा 50 रुपया नहीं दिया. इज इट फ्रॉड?
क्वेश्चन है इज इट फ्रॉड, तब आंसर आएगा नो, बिकॉज इट इज नॉट मेटेरियल. केस टू केस डिसीजन. ठीक है, मान लो आप गवर्नमेंट का 100 रुपया टैक्स मार के फॉरेन चले गए, इंडिया छोड़ के भाग गए, कितना 100 रुपया के लिए, उसको फ्रॉड में डालेगा नहीं. लेकिन 1000 करोड़ 10,000 करोड़ अब डालेगा. तो ये सब भी चीजें इसको बोलते हैं मेटेरियल. इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे. तो अगर वो मेटेरियल है तो वो फ्रॉड है, मेटेरियल नहीं है तो वो फ्रॉड नहीं है. ठीक है, इसलिए आजकल जो है जब डील होता है ना, कोई भी सेल परचेज, ये सब वन हैज टू बी अवेयर, सावधान रहना है. ठीक है, मतलब एकदम सीधा अच्छा काम नहीं चलेगा. एक बार फ्रॉड होगा सब लाइन में आ जाएगा. ठीक है, तो वन हैज टू बी अवेयर ऑफ दिस ऑल. बी अवेयर, स्पेशली व्हेन यू आर इन बिजनेस, यू शुड बी मोर अवेयर. एक से एक आपके पास स्कीम आएगा, समझ गए. मैंने आपको ऑफिस में बैठे बैठे आपको करोड़पति बना देगा. आप फंस गए, सब गायब. क्लियर. तो दिस विल बी कंटिन्यूड, ये चलेगा हम लोग का. नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटेंट भी लिखेंगे. राइट डाउन टास्क अपडेट. ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. हाँ, एलियन एनिमी, जब दो कंट्री के बीच में वार होता है, बेस्ट एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान. जब वार होगा, आजकल चाइना भी हो गया, पहले उसको नहीं लेते थे, आजकल हम लोग चाइना को भी ले लेते हैं. तो कंट्री के बीच में वार होगा ना, वार होने से तब उस समय उस कंट्री का दूसरे कंट्री का आदमी लोग जस्ट लाइक अ एनिमी फॉर अस है. ठीक है, ये पिक्चर वाला एलियन में मत जाइएगा. ठीक है, एलियन एनिमी मीन्स कंट्री टू कंट्री वार, अदर कंट्री. ओके, ओके, बाय.